Hello students, myself Nalini and today I am here with the class 12th poetry section, and students, the name of the poem is From the Passing of Arthur, which was composed by our famous Victorian poet Alfred Lord Tennyson. Before starting and explaining the poem, students, I would first like to tell you something about our great poet. So please listen it very carefully. Alfred Lord Tennyson was born on 6 August 1809 at Somersby, Lincolnshire in England. His father's name was George Clayton Tennyson and his mother's name was Elizabeth. He is famous for his poetic genius, and one very important thing about him is that we find optimism in his poetry. There are so many achievements related to him, in which he got a Chancellor Medal for his famous poem Timbuktu in the year 1829. He was also appointed as a poet laureate in the year 1850 after the death of William Wordsworth, which he held until his death. Not only this, he was also awarded the knighthood in the year 1884, and he died on 6 October 1892 at Ellsworth at the age of 83. Now we will talk about some of his famous work. Now students, we will talk about some of the famous work of Alfred Lord Tennyson. So his famous works are The Princess, Idylls of a King. Idylls of a King, it is a series of 12 poems in which the last series is From the Passing of Arthur. The other works are Break, 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 Idle Tears, Ulysses, The Lotus Eaters, Crossing the Bar, and The Lady of Shalott. So now students, after some of his famous work, and before explaining this poem, I would like to tell you some important things or summary of this poem to you. So see, this poem is an extract from Tennyson longer poem Mortal d'Arthur. जो ये पोएम है हमारी फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, ये टेनिसन की बहुत ही लंबी कविता मॉर्टल d'Arthur से ली गई है. अब इसमें एक्चुअल में है क्या, मैं आपको वो थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी. It is about King Arthur and his famous knight Sir Bedivere. यहाँ पे हम जब हमारी पोएम स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि जो किंग आर्थर है, he is going to island of Avilion with his queens. क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ. बहुत ही वो घायल अवस्था में है, वाउंडेड हैं, और वो अपनी रानियों के संग में एक मिस्टीरियस जर्नी पे आइलैंड और एविलियन जो है वहां पे जा रहे हैं. And at the bank of river where he meet his famous knight Sir Bedivere. Sir Bedivere जो है बहुत ज्यादा दुखी है, और वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि किंग आर्थर ने अपने राज्य में एक नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की एक व्यवस्था शुरू की थी. ये व्यवस्था क्या थी ये भी मैं आपको बता देती हूँ. इस व्यवस्था में जो ब्रेव होते थे, जो ब्रेव इनके नाइट होते थे, वो गरीब और निसहाय जो लोग होते थे उनको क्रूर लोगों के चंगुल से उनको मुक्त कराते थे और उनकी मदद किया करते थे. बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी ये. पर कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यवस्था, चाहे वो अच्छी हो, चाहे कितनी भी क्यों ना नोबल हो, पर अगर वो बहुत लंबे समय तक चलती है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खामियां आ जाती है. तो यहाँ पे भी यही होता है. किंग आर्थर नाइट बेडिवियर को समझा रहे हैं कि उनको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो शॉर्ट लिव थी, छोटी थी, और कोई भी व्यवस्था अगर लंबे समय तक होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी करप्शन आ जाता है. तो यहाँ नाइटहुड और राउंड टेबल की व्यवस्था में भी ऐसे ही हुआ था, और ये व्यवस्था समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी. और उसी दौरान राजा आर्थर जो हैं घायल हो चुके हैं, and he is going to island of Avilion, and Sir Knight Bedivere is also very sad. साथ ही साथ अब राजा आर्थर जो है सर बेडिवियर को समझाते हैं, नाइट बेडिवियर को समझाते हैं कि
चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है, समय समय पे परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी यही हुआ है, उनकी नाइट ऑफ राउंड टेबल की व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन हुआ है, वो व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ राजा आर्थर जो हैं सर बेडीवेयर को और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं। So students, after consoling Sir Bedivere, King Arthur tells him about the next thing, which is very important and very nice. He says to Sir Bedivere to pray for his soul. राजा आर्थर को यही लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में सर बेडीवेयर जो है राजा का फेस दोबारा से न देख पाए। तो राजा आर्थर की भगवान में बहुत श्रद्धा है और इसी वजह से वो सर बेडीवेयर को प्रेयर के बारे में बताते हैं, प्रार्थना के करने के लिए कहते हैं। और वो यही कहते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में तुम मुझको दोबारा ना देख पाओ, तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना के बारे में वो यही बताते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रेयर कैन डू मिराकल्स, एवरीबॉडी नो। और इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि गॉड इज द रूलर ऑफ द होल वर्ल्ड। इस पूरे संसार को चलाने वाला कौन है, ईश्वर है। और ईश्वर के हाथों में सब कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हम सभी को कभी भी विपरीत परिस्थिति में क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और ईश्वर से हमेशा क्या करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो यही राजा आर्थर सर बेडीवेयर से भी चाहते हैं और वो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान में आस्था नहीं रखता, भगवान की प्रार्थना नहीं करता, वो उनकी नजरों में जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट लाइक शीप एंड गोट्स टू हिम। एंड द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस इज दैट प्रेयर इज अ लिंक दैट बाइंड अस बाय गोल्डन चेन विद गॉड्स फीट। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात कही है कवि ने। उन्होंने यही बताया है कि प्रार्थना जो है एक सुंदर कड़ी के माध्यम से हम सभी को ईश्वर से जोड़ देती है। ठीक है, एक सोने की जंजीर की जो कड़ी है उससे हमें ईश्वर से जोड़ देती है। इसलिए हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए और उनकी प्रार्थना करते रहना चाहिए। सो in this poem, the two things which is very important, which was told by King Arthur, is that change is the law of nature. परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो ये बताते हैं सर बेडीवेयर को कि उनको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और अगर व्यवस्था खत्म भी हो गई है तो उसमें हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यवस्था हर समय समय पे बदल जाती है। एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट प्रेयर, कि हमें हमेशा ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये जो दो बातें हैं ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पोएम के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताने की कोशिश करी है। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पोएम के हार्ड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर एक्सप्लेनिंग द स्टैंजा टू यू, आई वुड फर्स्ट लाइक टू टेल यू द हार्ड वर्ड्स ऑफ द पोएम। पहले हम इस पे जो भी हमारे पोएम के हार्ड वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। सो देखिए जरा ध्यान से, पहली लाइन में पढ़ने जा रही हूँ। And slowly answered Arthur from the barge. Slowly आप सभी जानते हैं, slowly मतलब होता है धीमे से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किंग आर्थर जो है घायल अवस्था में है और जब उस सर बेडीवेयर से बात कर रहे हैं, उनको जो एडवाइस कर रहे हैं, तो बहुत धीमी आवाज में वो घायल होने की वजह से बोल पा रहे हैं। ठीक है, आर्थर राजा आर्थर थे। फ्रॉम द बार्ज, व्हाट डज दिस बार्ज मीन्स? बार्ज बेटा होता है छोटी फ्लैट नाव जो होती है, और फ्लैट बोट एक ऐसी फ्लैट बोट जिसको हम किसी भी कैनल के नीचे से आराम से निकाल के ले जा सकते हैं, लंबी और फ्लैट बोट। इसके बाद देखिए, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ओल्ड पुरानी और चेंज माने होता है बदलाव, प्लेस टू न्यू नई व्यवस्था। मतलब आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है, कोई भी व्यवस्था जो होती है
बदल दी जाती है। जब वो काफी लंबे समय तक चलती है तो उसकी जगह नई व्यवस्था अपना स्थान ले लेती है। अगली लाइन देखिए, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। यहाँ पे करप्ट का मतलब है यहाँ पे भ्रष्ट होने से। फिर आगे देखिए, कंफर्ट दाइसेल्फ। कंफर्ट माने तो होता है सुविधा क्षेत्र हमारा, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि किंग आर्थर सर बेडिवियर से धैर्य रखने को बोल रहे हैं। तो वैसे हमारा वर्ड कंफर्ट होता है सुविधा क्षेत्र, पर यहाँ पे हम उसको लागू करेंगे धैर्य से, ठीक है। दाइसेल्फ क्या होता है? अपने आप को। द वर्ड दाइसेल्फ मीन्स अपने आप को। What comfort is in me? I have lived my life and that which I have done. Live माने जी लेना। राजा आर्थर जो थे वो अपना पूरा जीवन जी चुके थे। सो आई होप इतनी लाइंस के अर्थ आपको समझ आ गए हो। अब हम बढ़ते हैं आगे आने वाली लाइंस पे। सो हियर द नेक्स्ट लाइंस ऑफ द पोएम, और इनके अब हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। देखिए जरा फर्स्ट लाइन, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। What does this word pure means? Pure होता है शुद्ध। But thou क्या है यहाँ पे? Thou is a dialect form of you या तुम। आगे देखिए, if thou shouldest see my face again. Shouldest is also a past form of shall. My face मेरा चेहरा, और again माने होता है दोबारा। फिर नेक्स्ट लाइन, pray for my soul. Pray माने प्रार्थना करना, for my soul. The soul word is जिसको हम कहते हैं आत्मा। More things are wrought by prayer. यहाँ पे क्या कहा गया है? ज्यादा से ज्यादा जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रेयर से सही होती हैं। तो wrought माने the word wrought means done by prayer. Prayer again प्रार्थना। देखिए नेक्स्ट लाइन, then this world dreams माने सपना, wherefore ये वर्ड क्या है? वेयरफोर होता है इसलिए, ठीक है। ये देयरफॉर लेट दाई वॉइस। दाई माने होता है तुम्हारा या तेरा, वॉइस माने आवाज। राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। राइज वर्ड मीन्स उठना या वृद्धि करना। अ फाउंटेन होता है फुब्बारा। आई होप इतने आपको हार्डवर्ड्स आपको समझ आए हो। अब हम आगे चलते हैं और जो कविता के अंतिम पंक्तियां हैं उनके हार्डवर्ड्स को देखते हैं। दीज आर द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम। और अब देखते हैं कि हार्डवर्ड्स हम लोग। पहली लाइन देखिए, फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स। यहाँ पे वही है जब राजा अर्थात सर बेडिवियर से कंपैरिजन करते हैं उन लोगों का जो कि प्रार्थना नहीं करते। तो उनको बताते हैं कि वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते, दे आर जस्ट लाइक शीप्स और गोट्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं एनिमल्स के लिए भेड़ और बकरियां। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ। नरिश होता है टू पास या टू लीड अ लाइफ या समय बिताना।
ठीक है। अब ब्लाइंड लाइफ, कैसी लाइफ है उनकी? अंधेरी लाइफ है, अंधकार में है। विद इन द ब्रेन, ब्रेन माने हमारा मस्तिष्क। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। इफ, यदि, भगवान को जानते हुए भी वो क्या नहीं करते? अपने हाथ प्रार्थना के लिए उठाते ना हो। लिफ्ट माने होता है उठाना। नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। बोथ उन दोनों ही व्यक्तियों के लिए। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे। होल राउंड अर्थ माने हमारी पृथ्वी। Bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. These are the very beautiful lines. यहाँ पे क्या कहा गया है? प्रेम और सद्भावना या प्रेम या प्रार्थना की जो एक सुंदर भावना है, that is just like a gold chain. वो किसके समान है? एक सोने की जंजीर के समान है. And the last words are but now farewell. यहाँ पे क्या है? farewell माने होता है विदाई। विदाई जो कि किंग आर्थर सर बेडीवेयर से अंतिम विदाई ले रहे हैं। सो आई होप you all understands the meaning and word meanings of all these lines. So students, now you can see that I am going to explain the lines of the poem, and before explaining the poem, first of all I would like to read it for you. So look at this. And slowly answered Arthur from the barge, the old order changeth, yielding place to new. And God fulfilled himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. Comfort thyself, what comfort is in me? I have lived my life, and that which I have done. May he within himself make pure, but thou, if thou shouldest never see my face again. Now I am going to explain these 8 lines to you. Just listen very carefully. जैसा कि मैंने आपको अभी पोयम के ब्रीफ में बताया था कि ये जो पोयम है, इस पोयम में राजा आर्थर जो है वो एक मिस्टीरियस जर्नी पर अपनी रानियों के संग एक छोटी सी नाव में बैठ के जा रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत ही घायल अवस्था में है। तो जब आप देख रहे हैं and slowly answered Arthur from the barge. बार्ज होती है बोट, ठीक है। बार्ज मतलब होता है बोट। तो एक बोट में बैठ के आर्थर जो है जा रहे हैं और वो धीमी आवाज में बात कर रहे हैं सर बेडीवेयर से। धीमी आवाज में इसलिए क्योंकि वो वाउंडेड घायल अवस्था में है। अब वो क्या कह रहे हैं सर बेडीवेयर से? वो देखिए, द ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, yielding place to new. As I told you, he advises Bedivere that change is the law of nature. हर व्यवस्था में जो पुरानी व्यवस्था होती है वो खत्म होती है और उसकी जगह पे नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है। And God fulfilled himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ईश्वर जो है वो अपनी इच्छाओं को हर तरह से उसकी पूर्ति कर लेते हैं और इसी प्रकार से कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी व्यवस्था है, अगर वो लंबे समय तक चलती है तो वो क्या कर देती है? संसार को करप्ट कर देती है। उसमें व्यवस्था में भी बहुत सारी अव्यवस्था आ जाती है। इसीलिए जरूरी होता है हर व्यवस्था का समय के साथ में बदल जाना। इसके अलावा पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें राजा आर्थर जो हैं सर बेडीवेयर को कंसोल कर रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं और उनको धैर्य रखने को कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे व्हेन ही सेड कंफर्ट थायसेल्फ, यहाँ पे राजा आर्थर सर बेडीवेयर से धैर्य रखने को कह रहे हैं। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं
कि मैं भी अब किस प्रकार से धैर्य रखूं। मैंने अपना सब काम कर दिया है, जो भी मुझे करना था वो मैं अब सब कुछ कर चुका हूँ, और अगर वो काम अच्छा है तो ठीक है, अगर उसमें कोई त्रुटि भी है तो ईश्वर उनको माफ कर देंगे। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, एंड दैट विच आई हैव डन, और अपनी सारे काम कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, बट दाउ इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। अब यहाँ पे राजा अर्थर को एक ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है सर बेडीबियर दोबारा से उनका चेहरा ना देख पाए, तो अब जो है वो उनको आगे प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एडवाइस करेंगे। So students, after those 8 lines, now see the next lines of the poem. देखा आपने कि पिछली लाइंस में जो राजा अर्थर हैं सर बेडीबियर को परिवर्तन के बारे में बताते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है और हर व्यवस्था में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेयर के बारे में। राजा अर्थर सर बेडीबियर को समझा रहे हैं कि उनको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, और हो सकता है आने वाले समय में वो राजा अर्थर को दोबारा ना देख पाए, तो वो उनके लिए क्या करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना की महत्ता बताई है यहाँ पे राजा अर्थर ने, यही कहा है कि प्रार्थना में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। प्रेयर इज अ सुप्रीम पावर, और जो चीजें हमें साधारण तौर पे नहीं मिल पाती वो प्रार्थना के बलबूते पे हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहते हैं राजा अर्थर, यहाँ पे देखिए, सी द लाइन्स आई विल रिसाइट टू यू। Pray for my soul, more things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore, let thy voice rise like a fountain for me night and day. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If, knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is never way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं राजा अर्थर जो है अंतिम विदा ले रहे हैं अपने फेवरेट नाइट सर बेडीबियर से, और उनको प्रार्थना की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। उनका यही मानना है कि हो सकता है वो दोबारा उनको ना देख पाए, तो उनके लिए वो क्या करें, प्रार्थना करें। देखिए, प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, बिकॉज यहाँ पे इनका यही मानना है कि बहुत सारी चीजें प्रार्थना के माध्यम से सही हो जाती हैं। जो चीजें हमें और कहीं तरीके से नहीं सही कर पाते, उनको हम प्रार्थना से सही कर सकते हैं। Than this world dreams of, wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. और यहाँ पे वो फुब्बारे की तुलना कर रहे हैं उनकी आवाज से, सर बेडीबियर की, और वो कह रहे हैं जिस प्रकार से एक फाउंटेन लगातार ऊपर गति करता है, इस प्रकार से आपकी भी आवाज जो है लगातार ऊपर जानी चाहिए मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। और one more thing which is very important in this line, that you can see rise like a fountain. Here we see the figure of speech simile. यहाँ पे तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है। तो उसके बाद देखिए प्रार्थना की महत्ता के बारे में आगे क्या कहते हैं वो। For what are men better than sheep or goats? आप सब जानते हैं, पीपल, मैन हैज माइंड बट एनिमल्स डू नॉट हैव माइंड। सो एनिमल्स में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, पर इंसान में सोचने समझने की शक्ति है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की प्रार्थना हाथ उठा के नहीं कर सकता, उसकी तुलना राजा अर्थर एक जानवर से करते हैं। उनका यही मानना है कि जो व्यक्ति प्रार्थना में विश्वास नहीं करता वो जानवर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ठीक है। That nourish a blind life within the brain, if knowing God, they lift not hands of prayer. भगवान को जानते हुए भी, भगवान की
शक्ति का एहसास करते हुए भी अगर हम भगवान की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो हम जो है जानवर के समान हैं। Both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is never way bound by gold chains about the feet of God. यहाँ पे एक और चीज है जो कि राजा आर्थर सर बेडीवेयर से समझा रहे हैं, प्रार्थना के लिए कह रहे हैं कि प्रार्थना एक वो माध्यम है, एक वो कड़ी है जिसके द्वारा हम ईश्वर के चरणों से अपने आप को बांध पाते हैं, अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। बट नाउ फेयरवेल, एज यू नो ही इज हियर टेकिंग गुड बाय, उनसे अंतिम विदा ले रहे हैं, तो लास्ट में वो अंतिम विदा लेके चले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने इस प्रेयर में राजा आर्थर के माध्यम से यही देखा जो उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। फर्स्ट, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जैसा कि हमने आपको समझाया, एंड सेकंड थिंग इज अबाउट प्रेयर, प्रार्थना के बारे में। ठीक है, सो आई होप ये पोएम आपको समझ आई हो। थैंक यू सो